السلام علیکم سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صاحبزادی سیدہ طاہرہ صدیقہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو ایک اور جھٹکا، بی این پی مینگل نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے ہر موقع پر وفاقی حکومت کا ساتھ دیا ہے، لیکن بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملا۔ شاہوں سے جو کچھ ربط نہ قائم ہوا اپنا، عادت کا بھی کچھ جبر تھا، کچھ اپنی زبان بھی۔ حکمران جماعت کو پہلا سیاسی دھچکا، بلوچستان میں اہم سیاسی اتحادی بھی حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں وفاقی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں وفاقی حکومت سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے ہر موقع پر وفاقی حکومت کا ساتھ دیا، لیکن بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملا ہے۔ ہم نے اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب کے موقع پر حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ بڑے ہمیں کہتے تھے، لیکن ہم نہ سمجھتے، ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے تھے بابو جی دھیرے چلنا، بڑے دھوکے اس راہ میں۔ تو ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی۔ تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ اختر مینگل نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے ایوانوں کو ہائیڈ پارک کارنر بنا دیا ہے، جہاں تجاویز تک نہیں لی جاتی۔ اگر تجاویز کو حل نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو نوٹ تو کر لیں۔ اگر نوٹ کرنے کے لیے کاغذ اور پینسل نہیں ہے تو ہم چندہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مت کہیں کہ ہمیں خالی خزانہ ورثے میں ملا ہے۔ کیا ہم اگلے بجٹ کی ذمہ داری ٹڈی دل اور کورونا پر ڈال دیں گے؟ سردار اختر مینگل اس سے قبل کئی مرتبہ حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دیتے رہے ہیں۔ سردار اختر مینگل، آغا حسن بلوچ، ہاشم نوتزئی، شہناز بلوچ اب حکومتی اتحادی نہیں رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سرکار قومی اسمبلی میں 4 سیٹوں سے محروم ہو گئی، سینٹ میں بھی 1 ووٹ کم ہو گیا۔ اب بھی قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد میں 180 اراکین موجود ہیں۔ کے 4 ارکان جبکہ حکومتی پالیسیوں سے تنگ اتحادی بھاگنے لگے۔ بی این پی کے فیصلے سے سیاسی پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اگست 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل اور تحریک انصاف نے مرکز میں حکومت سے اتحاد کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ قومی اسمبلی میں بی این پی مینگل کے 4 ارکان جبکہ سینٹ میں 1 رکن ہے، جن میں سردار اختر مینگل، آغا حسن بلوچ، ہاشم نوتزئی، شہناز بلوچ شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی کل 342 نشستیں ہیں اور موجودہ ارکان کی تعداد 341 ہے، لیکن جے یو آئی کے منیر اورکزئی کی وفات کے باعث 1 نشست خالی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے ایوان میں سادہ اکثریت یعنی کہ 172 کا ہندسہ درکار ہوتا ہے۔ بی این پی کی حکومت سے علیحدگی کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد میں 180 ارکان ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے 156، متحدہ کے 7، جی ڈی اے کے 3، بی اے پی کے 5، کاف لیگ کے 5، جمہوری وطن پارٹی کا 1، 2 آزاد اور عوامی مسلم لیگ کا 1 رکن شامل ہے۔ ملک کی صورتحال کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ بدقسمتی سے کورونا پر بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سندھ حکومت پر تنقیدی باؤنسرز بولے، شروع دن سے کہتے رہے ہیں ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہے، کوئی بھی ملک لاک ڈاؤن کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مراد علی شاہ اجلاس میں اتفاق کرتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو بعد میں اور بیان دے دیتے ہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے اوپر پالیٹکس کھیلی گئی ہے۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، این سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں، ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا، سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے۔ 2.5 کروڑ لوگ جو دہاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں، اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں، لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے،
मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। मैं तो पहले दिन से लगा, आप मेरी पहली स्टेटमेंट पढ़े, मैंने कहा हमारे लिए डबल प्रॉब्लम है, एक तरफ कोरोना से बचाना है, एक दफा लोगों को भूख से बचाना है। मुझे जो सारे उन्होंने प्रेशर पहले 2-3 हफ्ते में डाला कि जी आप भी सिंध वाला पूरा लॉकडाउन कर दें मुल्क को, जो बिलावल भुट्टो लगे हुए थे लॉकडाउन, बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं बेचारे गरीब लोग रहते कैसे हैं। सारी इकोनॉमी बंद कर देते हैं, गरीब आदमी तो मर जाता है उसमें। 2 रास्ते रह गए हैं। एक तरफ रह गया कि अगर SOPs के ऊपर हम चल पड़े तो इंशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल कोप कर लेंगे, लेकिन अगर SOPs पे ना चले, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ बड़ी ज्यादा मौत हो गई, हॉस्पिटल पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और सख्ती भी अब हम करेंगे। जिधर जिधर हमने देखा आवाम कोई फैक्ट्री काम नहीं कर रही, उधर हम उसके ऊपर क्लैम्प डाउन करेंगे। मुल्क में मोहलिक वायरस के वार मजीद मोहलिक हो गए हैं। 24 घंटों में वबा ने मजीद 136 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटों में मजीद 5839 नए केसेस रिपोर्ट होने से मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,54,000 से तजावुज कर गई। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 24 घंटों में कोरोना की मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए, जो एक ही दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2975 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5839 केसेस रिकॉर्ड होने से मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए, तादाद 58,239 तक पहुँच चुकी है। सिंध में कोरोना केसेस 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलोचिस्तान में 8,437, इस्लामाबाद में 9,242, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164 और आजाद कश्मीर में तादाद 703 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,149 हो गई है। सिंध में 886, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलोचिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 90 और गिलगित बल्तिस्तान में 17 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा बेकाबू होने पर मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। वायरस से आधा लाहौर सील हो गया है। शहर के 61 मकामात 14 दिन तक मुकम्मल बंद रहेंगे। बेकाबू कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुल्क के 20 शहर सील। पंजाब के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में कोरोना से ज्यादा मुतासरा 61 इलाके सील हैं। मुतासरा इलाकों में 30 जून तक दफा 144 भी नाफिज रहेगी। सील किए गए इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पब्लिक प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे। अवाम की आमदोरफ्त समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं होगी। एक शख्स जाती सवारी जरूरत के तहत इस्तेमाल कर सकेगा। सील होने वाले इलाकों में फल, सब्जी, दूध, किरियाना, पेट्रोल और तंदूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्री पूरा हफ्ता 24 घंटे खुले रहेंगे। कोरोना केसेस बढ़ने के सबब वफाकी दारुल-हुकूमत के मजीद 4 सेक्टर्स को सील कर दिया गया है। सील इलाकों में सेक्टर I-83, I-84, I-10 2 और I-10 मरकज शामिल है। सेक्टर G9, 3 और कराची कंपनी कमर्शियल एरिया पहले से ही सील थे। खैबर पख्तूनख्वा के 24 इलाकों को सील कर दिया गया है। पेशावर के 7, जिला खैबर के 3, सवात के 11 और जिला चित्राल के 3 इलाके खारदार तारे लगाकर सील किए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सिर्फ खाने पीने की जरूरी अशिया, अद्वियात की दुकानें खुली रहेंगी। कराची में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई है और मुतासरा हसास इलाकों को सील करने का अमल शुरू कर दिया है। जिला कुरंगी, मलीर और गरबी के जिली हेल्थ अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख कर इन अजला में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज दी है। चेयरमैन NDMA ने कराची के अस्पतालों के लिए तिब्बी सामान जल्द फराहम करने का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि अगले 10 से 15 रोज में सामान हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कराची में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस अस्पतालों का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक सिंध को दरकार तमाम सामान मुहैया किया जा रहा है। 70 ICUs वेंटिलेटर्स अपने साथ लाया हूँ। NDMA 382 बेड्स का तमाम सामान ऑक्सीजन सिस्टम समेत मुहैया कर रहा है। उनका कहना था कि 72 मजीद ICU वेंटिलेटर्स वाले बेड भी सामान में शामिल होंगे। सामान की तफसील बताते हुए तर्जुमान NDMA का कहना था कि कतर अस्पताल
अस्पताल औरंगी टाउन में 12 ICU वेंटिलेटर्स, 4 नेजल्स और 23 बाईपैप मुहैया किए जाएंगे। गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में 10 वेंटिलेटर्स, 45 नेजल्स और 20 बाईपैप देंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल को 18 वेंटिलेटर्स, 32 नेजल्स और 20 बाईपैप दिए जाएंगे। लियाकताबाद अस्पताल में 10 वेंटिलेटर्स, 35 नेजल्स और 30 बाईपैप फराहम करेंगे। उनका कहना था कि कोरंगी अस्पताल में 16 वेंटिलेटर्स, 32 नेजल्स और 32 बाईपैप मुहैया कर देंगे। इसी तरह जिन्ना अस्पताल कराची में मुख्तलिफ अक़साम के 70 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जाएंगे। कोरोना क्या आया, बाकी बीमारियों को नजरअंदाज किया जाने लगा। जुड़वा शहरों के सबसे बड़े अस्पताल में कैंसर, शुगर और मैदे के मरीज खार होने लगे। इंसुलिन के लिए मरीज सिफारिश ढूंढने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। आलमी वबा का पाकिस्तान में कदम जमाना था कि मैदे और कैंसर के मरीजों की जान पर बनाई। दूर दराज के मरीजों की उम्मीद पिम्स अस्पताल भी हर आने वाले मरीज का कोरोना टेस्ट करने तक महदूद है। ज़ियाबतीस गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीज कई घंटे चेक करवाने के लिए इंतजार करने की मुसीबत से दो चार हैं। डॉक्टरों की जानब से भी टाल मटोल से काम लिया जाने लगा है, जिस पर मरीज कहते हैं कि एक इंसुलिन तक के पैसे नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में आते थे कि मुफ्त इलाज हो जाएगा, अब यहाँ कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। बाहर से अप्रूवल नहीं कर सकता क्योंकि एक मजदूर कार आदमी हूँ। 1000-1500 की दवाई और इंसुलिन जो मुझे इधर से फ्री मिलती है ज़कात फार्म पे, तो वो मैं ले रहा था। अभी मैं मजबूर हूँ, तो मैं क्या करूँ। एंडोस्कोपी के मरीज जिनको पहले हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था, अब बात महीनों तक पहुँच चुकी है। मरीज कहते हैं कि ऑनलाइन चेकअप का कहा जा रहा है। आज तकरीबन तीसरा चौथा दिन इधर लटका के घूम रहा हूँ, ना मजदूरी कर रहा हूँ ना कोई चीज कर रहा हूँ। मजदूरी करूँगा तो कुछ आएंगे तो खाऊंगा ना सर, तो मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से करूँगा। हर बंदा जो आ रहा है उसको कोरोना में डाला जा रहा है और बाकी जो है उसको बीमारी को इग्नोर किया जा रहा है। जो बंदा आता है उसको कोरोना की ट्रीटमेंट दी जाती है, सिम्टम होते नहीं होते उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन। हुकूमत से अपील करते हुए शायरी कहते हैं आलमी वबा पर जरूर तवज्जो दी जाए, लेकिन दीगर बीमारियों से भी आंखें न चुराई जाएं। कैमरामैन अरशद सती के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुआवन खुसूसी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि दयारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की तकलीफ का अंदाजा है। उनका कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले SOPs को फॉलो करें। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की नौकरियां खत्म हो गईं, उनकी वापसी पहला हक है। PM साहब ने आपके लिए आवाज उठाई है, कल दिल से बोला है कि आप लोग वापस आएं और जल्द से जल्द आएं, लेकिन इस पे आप पे और हम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग वापस आएं, अगर आप अपनी 14 दिन की सेल्फ क्वारंटीन घर पे नहीं करेंगे तो आप लोग तो आ जाएंगे जो पहले हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें एयर स्पेस फिर से बंद करनी पड़े क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है एक हफ्ते में, तो फिर जो आपके जो भाई बहन जो बाहर आप ही के कॉलीग्स हैं जो बाहर काम करते हैं, आप लोग उनको तकलीफ देंगे कि वो वापस नहीं आ सकेंगे। भारत की दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत बेनकाब करते रहेंगे, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शरका ने आज़म कर लिया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहत और इश्तिआल अंगेजियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स की अहम बैठक हुई। शुरका ने इस आज़म को दोहराया कि भारत के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। भारतीय जारहत और इश्तिआल अंगेजियों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। शुरका ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी और अफगान मफाहमती अमल में मुसलसल मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। DG ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरका ने इस आज़म को दोहराया कि मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म, सितम और दहशतगर्द तंजीमों की खुल्लम खुल्ला हिमायत को बेनकाब करते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक इजलास में कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमती इक़दामात में पाक फौज के ताउन, टिड्डी दल के हमलों के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदादे पोलियो मुहिम पर भी गौर किया गया है। शुरका का कहना था कि पाक फौज इन ऑपरेशन में हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। कोरोना वबा के खिलाफ एक कौमी सोच के साथ ही नबर्द आसमां हुआ जा सकता है। इस बात पर जोर दिया कि हर शख्स को एहतियाती तदाबीर और उसूलों पर अमल दरामद में अपना किरदार अदा करना होगा। लाड़काना में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बल्दियाती निजाम आने वाला है, जिसके बाद पैसा डायरेक्ट जिला कौंसिल तक जाएगा।
ان کا کہنا تھا کہ اختیارات نچلی سطح پر پہنچائے جائیں گے، عوام بہتر فیصلے کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہر قائد میں میئر کے ڈائریکٹ الیکشن کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی۔ میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے۔ ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا، پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا، ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، کورونا ایمرجنسی ریلیف کے لیے 5 ارب روپے مختص، ترقیاتی اسکیموں کے لیے 23.5 ارب روپے کا اعلان۔ صوبائی حکومت کا 1241 ارب روپے کا بجٹ ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بجٹ سندھ کے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہے۔ تک کی کابینہ کی منظوری کے بعد گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ 10% کی گئی ہے اور گریڈ 17 سے 22 کی 5% بڑھائی گئی ہے۔ سو وی ول پرووائڈ میکسیمم ٹو دی ہیلتھ سیکٹر۔ سو ہم تعلیم پہ اپنا فوکس کنٹینیو کریں گے۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین نے شدید ہنگامہ اور شور شرابہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپوزیشن اراکین کے احتجاج کے باوجود تقریر مکمل کی۔ اراکین نے احتجاجی بینرز لہراتے ہوئے صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ بجٹ آنے سے قبل ہی پشاور کے شہریوں نے بجٹ سے امیدیں ختم کر دی ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے پشاور کے شہریوں کا کیا کہنا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج تک جو حالات جا رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو کوئی ریلیف دیں، اور ریلیف کے بدلے میں دن پر دن مہنگائی کا زور ہے، عوام بھوک سے ہاتھوں مر رہے ہیں، لیکن بجٹ میں حکومت نے عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا۔ مہنگائی ہے دن پر دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری تو بہت توقع تھی کہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف دے گی، لیکن وہ ایسا نہ ہوا۔ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ایسے کوئی غریب کے لیے کوئی یہاں مطلب کہ ریلیف ملے۔ امیر تر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر غریب ہوتا جا رہا ہے، تو لہٰذا کچھ کریں نا جی۔ میرے خیال میں یار یہ عوام دوست بجٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سسٹم شروع ہے کہ غریب ہمیشہ غریب ہی رہے گا، ان کی جو سرمایہ دار ہے وہ ہمیشہ سرمایہ دار ہی رہے گا، اور حکومت بھی کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم یا کوئی اس طرح کوئی منصوبہ نہیں لا رہی جو غریب کو 2 وقت کی روٹی تو مل سکے۔ روز بروز غریب جو ہے نا وہ دبتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ بجٹ ہے وہ بھی پیش ہونے والے، تو جتنا میں جانتا ہوں اس سے عوام کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب پاکستان کی تو ایسی حکومت ہے، جب پیٹرول سستا ہو جاتا ہے تو پھر نایاب ہو جاتا ہے، پیٹرول پمپ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ 5 پیٹرول پمپ بند ہوں گے، چلتا کھلا ہوگا تو اس میں بھی اتنا رش ہوگا کہ قطار میں نمبر آئے گا تو 2 گھنٹے تقریباً لگیں گے، تو میرے خیال سے اس سے عوام کو کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ملک کے معروف میزبان طارق عزیز کی نماز جنازہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور شوبز سمیت سیاسی جماعتوں کی شخصیات بڑی تعداد میں شریک ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید وقار حسین۔ ملک کے معروف میزبان طارق عزیز کی نماز جنازہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ قاری صداقت علی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور شوبز سمیت سیاسی جماعتوں کی بڑی شخصیات شریک ہوئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ طارق عزیز جیسی بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، وہ خوش اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے طارق عزیز کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے وقت کے آئیکن اور ٹی وی گیم شوز کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ جنازے میں شریک شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ہیروز کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ طارق عزیز کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد امین کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔
پاکستانی ٹیلی ویژن کے پہلے میل اناؤنسر اور ٹی وی کمپیئر طارق عزیز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کی محفل سے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے ہیں۔ طارق عزیز نے ٹی وی پروگرام نیلام گھر سے شہرت پائی ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ آپ کے والد صاحب پاکستان بننے سے 10 سال پہلے سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے۔ طارق عزیز نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا اور ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ چھوڑ چکا کوزہ گری تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں۔ داور حشر میرا نام آئے اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ طارق عزیز نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے، لیکن طارق عزیز کو اصل شہرت 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر سے حاصل ہوئی اور وہ بلندیوں تک جا پہنچے۔ کئی سال تک جاری رہنے والے اس پروگرام کا نام بعد میں تبدیل کر کے بس میں طارق عزیز رکھ دیا گیا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خبر کی مخبرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ٹی وی میزبان، اداکار، شاعر اور سیاستدان بھی تھے۔ 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز کے علاوہ فلمز میں اداکاری بھی کی۔ ان کی سب سے پہلے فلم انسانیت تھی اور ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں، روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ چاند چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، دریاؤں کی روانی جاری رہتی ہے، دن آتے ہیں، دن جاتے ہیں، دیے جلتے ہیں، دیے بجھتے ہیں۔ قابل قدر فنی خدمات کے اعتراف میں طارق عزیز کو بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے جان، یہ کارگاہ ساری دکان شیشہ گھر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف اداکار اور ٹی وی کمپیئر طارق عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے مطابق اپنے تعزیتی پیغام میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے طارق عزیز کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ طارق عزیز کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پنجاب میں ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے 10 کروڑ روپے فنڈز اور کورونا سے آگاہی کے لیے میڈیا مہم چلانے کے لیے 50 کروڑ فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ کامران چودھری کی رپورٹ۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، مختلف محکموں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دے دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صوبہ پنجاب میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 10 کروڑ فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی، جبکہ کورونا وبا سے آگاہی کے لیے میڈیا مہم چلانے کی وزارت اطلاعات و نشریات کی سمری پر 50 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری بھی دے دی گئی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایٹمی توانائی کمیشن کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے، جبکہ رینجرز کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس منظور کر لی۔ ECC نے PIA کو قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 3 ارب 20 کروڑ فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ہونے والے ECC اجلاس میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے SMEs سیکٹرز کے لیے اسکیم میں مزید بہتری کا فیصلہ کیا گیا۔ ECC کے مطابق 80 کروڑ ٹرن اوور والے SMEs کا 60% نقصان حکومت برداشت کرے گی، جبکہ چھوٹے اور درمیانے کاروبار والے اپنے ورکرز کو ملازمت سے نہ نکالنے کے پابند ہوں گے۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔
फसलों, खेत खलियानों और बागात दरख्तों के दुश्मन टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। 42 मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। ऑपरेशन में महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें शरीक रही हैं। नेशनल टिड्डी दल कंट्रोल सेंटर की टीमें पाकिस्तान से टिड्डी दल के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मिलकर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 42 मुतासरा अजला में काम मुकम्मल हो चुका। 42 अजला के मुतासरा इलाकों में 972 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 7.93 करोड़ एकड़ रकबे पर सर्वे किया जा चुका है। सूबा पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,67,615 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया। सूबा सिंध में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,23,103 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया। NLCC के मुताबिक 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 882 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,84,933 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया। इसी तरह से 7 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 2,429 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया गया। NLCC के मुताबिक सूबा बलोचिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,04,560 एकड़ रकबे पर सर्वे किया गया, जबकि 11 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 8,606 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन भी किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लिमानी ज़राई कमेटी की हिदायत पर PIA ने एक्सपोर्टर्स के लिए आम एक्सपोर्ट करने के लिए निर्खों में कमी कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की ज़राई कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आवाम की बरामदात के हवाले से मुश्किलात का जायजा लिया गया। वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम ने बताया कि ईरान का बॉर्डर खोलने का फैसला हुआ है। बॉर्डर खोलने से जमीनी रास्ते से आम ईरान एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अगले 24 घंटों में वजारत कॉमर्स और दीगर इदारे तमाम मुश्किलात दूर करने की हिदायत की। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि PIA और वजीर हवाबाजी सरवर खान का मशकूर हूं। PIA के निर्खों में कमी से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। आम की एक्सपोर्ट बढ़ने से ज़र मुबादला में इजाफा होगा। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, लीगी रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा ने नैब कॉल अप नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। नून लीगी रहनुमा की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कोरोना वबा के दौरान नैब में जाती हैसियत में पेशी जिंदगी के लिए खतरात का बायस है। अदालत नैब को मुझे जाती हैसियत से बुलाने की बजाय वीडियो लिंक के जरिए इंटरव्यू की हिदायत करे। दरख्वास्त में कहा गया कि 5, 12, 16 मार्च और 8 जून के कॉल अप नोटिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि नैब कॉल अप नोटिस को गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार दे, जबकि कोरोना वबा के दौरान नैब को जाती हैसियत से बुलाने से रोका जाए। लीगी रहनुमा ने चेयरमैन नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर को अपनी दरख्वास्त में फरीक बनाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज कराएंगे, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, सबसे पहले पेट्रोल का बहरान कहाँ पैदा हुआ, जिस पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोल का बहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मियांवाली वज़ीर आज़म का हल्का है, वजारत पेट्रोलियम ने सिर्फ इसी हल्के में ज्यादा तवज्जो दी। वज़ीर आज़म ने अपने हल्के की वजह से पेट्रोल बहरान खत्म करने का कहा, ये खराब गवर्नेंस की आला मिसाल है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही है। चेयरपर्सन ओगरा की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद करते हैं। चेयरपर्सन ओगरा काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे। ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मालूम है मिली भगत से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाए तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब से मुतमईन नहीं, इस मामले पर जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के केस में पंजाब के गन्ने के काश्तकारों के फरीक बनने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह ने दरखास्त पर समाअत करते हुए दरखास्त को 19 जून को बाकी दरखास्तों के साथ केस मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सफदर शाहीन एडवोकेट गन्ने के काश्तकारों की तरफ से अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि गन्ने के काश्तकारों का शुगर मिल्स एसोसिएशन के केस से बराह रास्त ताल्लुक है। मुल्क भर में कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान को उजागर करने के लिए सेमिनार्स और ऑनलाइन तकरीब का सिलसिला जारी है।
नौजवान नस्ल और असातिज़ा को पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिए से रोशनास करवाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध नौशेरो फेरोज में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कौमी बयानिए की सूरत और उसके नफाज की अहमियत पर रोशनी डाली। भारत ने फिर खित्ते के अमन को तबाह करने का मंसूबा बना लिया। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने चीन से जंग की धमकियां देना शुरू कर दी। उधर चीन ने भी भारत को खबरदार किया है कि अगर मजीद कोई इश्तियाल अंगेजी की गई तो उससे भी कारी जवाब आएगा। अमन का दुश्मन भारत फिर बदअमनी के रास्ते पर चल निकला। पहले पाकिस्तान और अब चीन को जंग की धमकियां देना शुरू कर दी। आलमी ताकतों पर अब साबित हो चुका है कि भारत खित्ते में अमन का ख़्वाहां नहीं। कभी पाकिस्तान तो कभी नेपाल और कभी चीन पर हमसाये के साथ जंग करने की धमकियां देना और फिर मुंह की खाना इसकी जैसे आदत ही बन चुकी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी की जुबान दराजी पर चीनी वजारत खारजा ने भी भारत को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। उनका कहना है कि वादी गुलवान पर खुद मुख्तारी हमेशा से चीन की ही रही है। इंडियन फौजियों ने सरहदी मामलात पर हमारे प्रोटोकॉल और कमांडर्स की सतह के मुज़ाकरात पर तयशुदा इत्तफाक़ राय की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। अब फिर ऐसा हुआ तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। बुज़दिल भारतीय अफवाज का फिर भांडा फूट गया। पहले लद्दाख में पिटाई हुई, अब सोशल मीडिया पर दुर्गत बन रही है। भारतीय न घर के रहे न घाट के। जिल्लत और रुसवाई भारतीय अफवाज का मुकद्दर बन चुकी है। निहत्ते कश्मीरियों पर गोलियां बरसाने वाले बुज़दिल भारतीय फौजी पहले लद्दाख में रुसवा हुए और अब उनकी ठुकाई आलमी सोशल मीडिया फोरम पर हो रही है। हर कोई दिल खोल कर भड़ास निकाल रहा है। सोशल मीडिया में भारतीय अफवाज, इंतहा पसंद मोदी सरकार और बदजुबान भारतीय मीडिया को बदतरीन जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन भारतीय फौजियों की तस्वीर शेयर करके उनकी बुज़दिली की कहानियां सुना रहे हैं तो कुछ भारतीय अदाकारों की झूठी तसल्लियों पर खुश हैं। कुछ सार्फिन ने चीनी सदर की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो नरेंद्र मोदी को अपने पांव के नीचे दबाए हुए हैं। एक सारिफ ने कश्मीरियों पर जुल्म करते भारतीय फौजियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, निहत्तों पर जुल्म करने वाले भारतीय अब अपनी लाशों को उठाने में मसरूफ हैं। कुछ सार्फिन भारतीय बदज़बान मीडिया की दुर्गत बनाने में मसरूफ हैं। कुछ मीडिया को मोदी का बिकाऊ माल और कुछ चीनी कंपनी का स्पॉन्सर पर अपनी फौज की लाशें दिखाने वाला मीडिया करार दे रहे हैं। वादी जन्नत नजीर आज भी भारतीय मजालिम की अमली तस्वीर बनी हुई है। भारतीय फौज की इश्ताल अंगेजी उरूज पर पहुंच चुकी है। नौजवानों का कत्लेआम, खवातीन की बेहुरमती और लूटमार बुज़दिल भारतीय फौज का वतीरा बन चुका है। मकबूजा वादी में इंसानियत कब तक से सख्ती रहेगी, हर्जी शऊर का सवाल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबरो तशद्दुद रुक न सका। रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कत्लो गारत, लूटमार, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सफाक भारतीय एहलकार रात का अंधेरा फैलते ही मुजरिमाना सोच के तहत वादी में गश्त पर निकल खड़े होते हैं। जहां कोई मुसीबत का मारा किसी जरूरत के बाइस दिखाई दे उसे गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय फौज नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कई मकामात लूट चुकी। घरों में दंदनाते घुस आने वाले भारतीय फौजियों को नौजवान रोकें तो उन्हें भी अब्दी नींद सुला दिया जाता है। वादी में आज भी इंसानियत सिस्कियां लेने पर मजबूर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कारोबार बंद होने से मईशत तबाह हो चुकी है। तालीमी इदारों पर भी ताले पड़े हैं। मौलिक वबा के हमले भी आजमाइश बने हुए हैं। वादी में इलाज की सहूलियात पर पाबंदी के बायस वबा के शिकार अफराद की मालूमात इकट्ठा न की जा सकी। रोसियाही आश्कार होने के खौफ से मोदी हुकूमत ने वादी में सहाफती और इंसानी हुकूक की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। और अब जाने के मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने जुम्मे से बारिशों की पेशगोई कर दी है। प्री मानसून का सिस्टम जुम्मे के रोज से बारिशों का सबब बन सकता है। हफ्ता और इतवार के रोज मुल्क के बेशतर बाला हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। उधर श्रीनगर और जम्मू में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जिसका सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क हवाएं मौजूद हैं। मानसून हवाएं मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में रवां हफ्ते के आखिर में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से जुमा से प्री मानसून बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, जनूब मशरकी सिंध, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिससे
जिससे इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू समेत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दादू, लाड़काना और सिबी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीन में तूफानी बारिशों से सैलाब ने तबाही मचा दी। चीन के शहर जियांग में सैलाब का पानी 400 साला कदीम पुल बहा ले गया। मकामी अफराद ने तारीखी पुल के पानी में बहने की वीडियो कैमरे की आंख से रिकॉर्ड कर ली है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि तीनों फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी एजाज की बात है। माजी में इंग्लैंड में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी रही है। टेस्ट मैचेस जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की। खिलाड़ी इस बार भी बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरेंगे। काफी पुरुमीद है और पीसीबी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि क्रिकेट वापस आई है और इंग्लैंड का टूर हर दफा मुश्किल टूर होता है और टेस्ट क्रिकेट उसमें टेस्ट मैचेस है तो काफी मुश्किल रहेगा। अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर अपने मैचेस करेंगे तो इंशाल्लाह हम मैचेस के लिए तैयार। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं जैसी मेरी रिसेंट की परफॉर्मेंस है मैं उसको आगे लेके जाऊं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस दूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। उनका कहना है कि साबिक क्रिकेट कोच पीके आर्थर ने उन्हें कहा कि फ्री माइंड होकर खेलें, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और गेंद को मेरिट के हिसाब से खेलना छोड़ दिया था और हर गेंद को हिट करने की कोशिश करते थे। आपने जो 3 बातें बोली तो इसमें मैं जो एक मैन है जो मेरे अगर मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से आपको जवाब दूं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं मतलब क्योंकि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला हूं तो मैं कभी इस तरह नहीं खेला कि मैं मतलब पहले ओवर से शुरू हो जाऊं, हिटिंग करूं या स्टार्ट से ही। मैं बहुत टाइम लेके खेलता था, लेकिन इसमें मैं क्रेडिट भी दूंगा पीके आर्थर को कि उन्होंने मुझे जब शुरू में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपने बिल्कुल टेंशन लेके नहीं खेलनी क्रिकेट, आप बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोरोना फ्री मुल्क न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप की मेजबानी